Hello friends and my dear students. I welcome you all to on my YouTube channel Gaudi Singh. So guys, today's topic is to discuss about numericals of polynomials and quadratic equations. In our previous videos, we have discussed about some concepts of polynomials and quadratic polynomials and various kinds of methods to find out zeros of the polynomials. So our discussions will start with the general equations of polynomials, and after that we will do some questions. These are the questions selected from the NCERT book, chapter number 2. I have here only 4 questions, 1, 2, 3 and 4. Find all zeros. First question you can see, find all zeros of a polynomial if 2 zeros are given. So it means if it is a quadruple polynomial, you can see it has a highest degree 4. It means it will have 4 roots. Yeah, you can say 4 zeros. But here we have 2 zeros are given. How we will solve this? We will explain in this video. Next, we on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a gx yani divisor, and the divisor is unknown for us, we have to find this, and quotient is given x minus 2 and the remainder is also given minus 2x plus 4. All these terms are in polynomials, so we have to find gx, you can say divisor. If the zeros of polynomial this are a minus b, a and a plus b, यानी कि this polynomial, यानी कि this x cube minus 3x square plus x minus 1 is a polynomial, and this polynomial has 3 zeros given here, a minus b, a and a plus b. As it is highest degree is 3, so it will have only 3 zeros. Find the values of a and b. This will be our question to discuss. Next is your 5th question. If the polynomials x minus 4, x की power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 divided by another polynomial gives you this x square minus 2x plus k, where remainder is given x plus a. Find the values of k and a. These are the selective questions that I have been teaching all the students of 10th class since 2014, and these are important questions of NCERT. We will not go for solution of all the questions of NCERT. We will take some important examples or questions. So let's start with discussion general form of polynomial. General form of polynomial. General form of polynomial is written over here is this in the form of a naught x e power naught in algebraic expression. It is the algebraic expression of the polynomial a naught x e power naught plus a1 x e power 1 plus a2 x e power 2 plus dot dot a n plus x e power n. It is the series, you can say it is the series, addition is there, and these are the variables x naught, x1, x2. Yeah, x is a variable, we know it is independent variable x, and 0, 1, 2, 3 are the degrees या exponent on that variable n, and a naught, a1, a2, an are coefficient of variables. Okay, so first of all you have to understand these coefficient can be any real value. A belongs to real, यानी belongs to real value, तो a belong करेगा real value को, and the exponent will always have a positive integer. It will be a positive integer always. Hence we can define a polynomial function, otherwise it will not be a polynomial function. So linear polynomial,
फर्स्ट इज आवर टू डिस्कस लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल को आप यहाँ से देखिए कि इफ इन फ्रॉम ए जनरल पॉलिनोमियल वी कैन ड्रॉ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज लाइक दैट. दिस इज योर अप टू दिस, यानी x की पावर 1 अप टू दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल. अप टू दिस वी हैव टू फॉरगेट दिस. सो a0 x1 प्लस a1 x1 इज द लीनियर पॉलिनोमियल. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि x की पावर नॉट इज ऑलवेज 1 होता है. ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन यानी हम कह सकते हैं कि a0 x0 को हम b मान लेते हैं, ये b है. तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज b प्लस a1 x1. ठीक है, it is your linear polynomial. We have also discussed this polynomial in our previous videos. So where the coefficient of the highest variable, a highest degree variable, that is x, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी a should not be equal to 0, otherwise it will not remain as a linear polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें हमने यहाँ तक, इसको आप देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जनरल फॉर्म के अंदर. यहाँ तक आप इन टर्म्स को आप ले सकते हैं पॉलिनोमियल में और इसको छोड़ देंगे. तो आप देखेंगे कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू है 2, हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. And the coefficient of this highest value a2 must not be equal to 0, otherwise it will not remain as a quadratic polynomial. वो quadratic polynomial नहीं रहेगा. This is all about. तो इसको हम जनरल फॉर्म में और एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं. That is can be, this is a x square plus bx plus c फॉर्म में है ना. यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो. क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 डिग्रीज. तो इस तरीके से एंड सो ऑन वी कैन फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम ए, या वी कैन ड्रॉ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स फ्रॉम ए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. चलो लेट्स मूव. अब आगे हम चलते हैं. This is your cubic polynomial. Okay, so let's move to the some examples or some questions of based on polynomials. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, find all zeros of polynomial 2x4 minus 3x square minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. This is your question. And root 2 and minus 2 root 2 are two zeros of this polynomial. ये आपका zeros है. ठीक है. Find all other zeros, यानी कि it has highest degree 4, it means it will have 4 zeros and from amongst them 2 are given. उसमें से 2 हमें दे रखे हैं, 2 और निकालने हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये आपका पॉलिनोमियल जो कि गिवन है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन हो गया. इस पॉलिनोमियल के अगर हम y इक्वल टू 0 करते हैं तो हाउ मेनी ज़ीरोज़. अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपको पता है कि हमें इसका क्या करना पड़ता था, हमें इनके फैक्टर करने पड़ते थे, यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से. तो इसके 4 ज़ीरोज़ आएंगे फैक्टर फॉर्म में. आपको पता है जब हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाला x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस नीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डेज. तो ये इस तरीके से इसके 4 फैक्टर्स बनते हैं. अगर अल्फ़ा हमारा एक रूट 2 है जो कि 0 है, ठीक है,
ये एक्चुअली x की वैल्यू है, जो x है वही वेरीफाई करता है। तो x माइनस रूट 2 आपका एक फैक्टर बन जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा तभी ये कम्प्लीटली 0 हो सकता है, ये वेरीफाई करेंगे ना। अगर हमारा x की वैल्यू अल्फ़ा ही हुई तो ये 0 हो जाएगा और 0 होने पर ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, तो ये वेरीफाई करेगा। तो इसका मतलब x अगर अल्फ़ा है और अल्फ़ा मतलब रूट 2 है तो x माइनस रूट 2 बिकम फैक्टर। तो यहाँ पर जो है x माइनस रूट 2 एक फैक्टर बन जाएगा। सिमिलरली अगर बीटा हमारा माइनस रूट 2 है तो x प्लस रूट 2 आपका ये फैक्टर बन जाएगा, x प्लस रूट 2 आपका दूसरा फैक्टर बन जाएगा। बाकी हमें फैक्टर लैम्डा वाला फैक्टर नहीं पता और ना ही नीटा वाला फैक्टर नहीं पता, वो हमारे 0 होंगे। ठीक है, ये दो फैक्टर हमें नहीं पता है। तो अब आप देखेंगे हमें जो फैक्टर नहीं पता, जो अननोन फैक्टर है वो ये दोनों है, ये हमें नहीं पता है। आपको नहीं पता ये फैक्टर्स कौन से हैं, लेकिन हमें ये पता है। तो अब ओवरऑल हमारी समझ में ये आ रहा है कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को हम लिख सकते x। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हमने पूरे दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई कर लिए एक साथ, ठीक है। और ये जो फैक्टर हमें नहीं पता, चलो हम इसको अभी अननोन ही मान के चलते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है क्या करना होगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं समझा दूँ कि मुझे करना क्या है इन दोनों फैक्टर्स को निकालने के लिए। देखिए अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं किसी भी रफली देखिए। अच्छा ठीक है, यहाँ समझाता हूँ रफ। अच्छा मैं आपको रफली यहाँ पे समझा देता हूँ एक दूसरे पेज पे। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, क्या है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब हम बात करते हैं 6 से, जैसे हमारे पास 7 एक डिजिट है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे 3 2 + 1, ठीक है। ऐसा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 7 इज़ डिवाइडेड बाई 3 × 2, देख रहे हैं 6 दैट इज़ 1। तो ये आपका क्या है, 7 आपका क्वेश्चन 3 2 = 6 हो जाएगा और ये रिमाइंडर। तो वैसे एग्जैक्टली जो डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल आ रहा है, डिविडेंड किसके इक्वल आ रहा है, ये डिविडेंड है आपका, ये आ रहा है डिवाइज़र और क्वोशिएंट के प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अगर मान लो हमारा डिवाइडर 0 हो जाए, जैसे 6 अगर 3 / 2 करेंगे तो 6 आ जाए 0, तो उस केस में 6 = 3 × 2 लिखा जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये आपका फैक्टर फॉर्म है, यानी 6 को हम इस तरीके से फैक्टर में लिखते हैं। अगर हम इसको एक, यानी कि ये 2 फैक्टर है, अगर मैं इस डिविडेंड को किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड करता हूँ, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो वो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, हमें 2 वाला मिल जाएगा। अगर नहीं तो अगर 2 से करेंगे, इस वाले फैक्टर से करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। यानी कि अगर हम किसी भी डिविडेंड को या किसी भी एक नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो अनदर फैक्टर, जो और फैक्टर होंगे उसमें से हमें वो फैक्टर मिल जाएगा कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा ये कंबाइंड फॉर्म में क्यों कह रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये फैक्टर, तो हमें क्या करना है, डिवीज़न। तो डिवीज़न के लिए हमारे पास जो डिवीज़न करना है, आप देखते हैं कि जो हमें डिवीज़न करना है वो करना है लॉन्ग डिवीज़न। अब आपको पता है लॉन्ग डिवीज़न कैसे करते हैं, चलिए हम लॉन्ग डिवीज़न सिखा देते हैं आपको कैसे करेंगे। हमारे पास है जो नंबर है, जो कि हमारे पास है डिवाइज़र, हम डिवाइज़र को रेड में लिखेंगे, ठीक है। ये डिवाइज़र है x² - 2, ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है। और जो डिविडेंड है हम उसे कोशिश करते हैं इसको हम इस कलर में लिखें, ग्रीन कलर में, 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड। और जो हमारा क्वोशिएंट होगा उसे मैं ब्लैक कलर से लिखूँगा और जो सॉल्यूशन होगा मैं ग्रीन कलर से ही करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका डिवाइज़र है,
ये जो चीज़ है एक्चुअली ये डिवाइज़र है, ठीक है, और ये आपका डिविडेंड है। और जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, लेकिन सबसे पहले हमें लॉन्ग डिवीज़न सीखना है। लॉन्ग डिवीज़न सीखने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से हम एक नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसे ही इनका डिवीज़न किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक रफ पेपर पे समझाता हूँ पहले, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, जनरली हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे अभी मैंने लिया डिवाइड, सपोज़ हमारे पास एक 152 नंबर है और उसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं विद 3 विद डिवाइडेड बाय नॉट 3 12, ओके, ठीक है। तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर इज़ 3 माइनस, वी कैन, इसको हम नीचे ले सकते हैं, डिजिट को आपको पता है ऐसा हम लेते हैं। तो 12 1 जा 12 एंड रिमाइंडर इज़ 3, देन इज़ 2 32, 12 2 जा 24, सब्ट्रैक्शन 12 minus 4 8 इज रिमाइंडर, ओके। तो दिस इज रिमाइंडर। अब इसको हम देखेंगे तो 152 इज इक्वल टू, जो कि डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, उसको हम इक्वल टू लिखेंगे डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस 8, तो दैट इज़ 144 प्लस 8 इज गिव्स यू 152 हैंस। तो दिस इज़ द सिंपल डिवीज़न जो हम नॉर्मली सीखते आ रहे हैं। अब जो हमें इसमें डिवीज़न करना है वो भी समथिंग लगभग ऐसा ही है, बट कुछ इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इन टर्म्स को टर्मिनेट करना चाहते हैं, जैसा कि हम टर्मिनेट करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, क्योंकि लाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमें इसके जैसी टर्म जनरेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम अगर कोई ऐसी डिजिट देखेंगे, कोई ऐसा उस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस फैक्टर को हम उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये जो टर्म्स हैं ऐसी मिले ताकि ये टर्मिनेट आउट हो जाए, ठीक है। हमें कोशिश करना है कि 2x4 लाना है। तो x स्क्वायर को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि हमें 2x4 मिले? तो हम जानते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू नो इट विल गिव यू 2x4, ठीक है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, गलती यहाँ पर बच्चे कर जाते हैं। अभी काम पूरा कैसे होगा, जब हम, क्योंकि ये पूरा प्रोडक्ट, ये वाली पूरी फैक्टर मल्टीप्लाई होती है इस वाली टर्म से, तो इस पूरे में करना है ना मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको करना है। यानी कि हमें एक्चुअल करना है क्या, वो ये करना है कि x स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर से। आई समझ में बात? तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2x4 और ये अंदर जाएगा तो 4x स्क्वायर। आगे बात समझ। लेकिन देखिए यहाँ पर जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए x 3x क्यूब है। आप ऐसा न लिख करके जो भी आपकी लाइक टर्म्स है उसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि इस डिजिट को हमें, यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा, यानी कि दिस डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड। इसको, इस वाली चीज़ को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी नीचे वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम नीचे वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम एज इट इज़, क्योंकि हाईएस्ट पावर है, 3x क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका 3x क्यूब आ जाएगा, और ये हमने एज इट इज़ यहाँ पर उतार लिया। और ये चीज़ देखिए अब इन दोनों में, क्योंकि इसका साइन अब प्लस माना जाएगा ना कि माइनस। इसका साइन, ये प्लस का 4x स्क्वायर है और ये माइनस का 3x स्क्वायर है, आपको पता है प्लस x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और एक और अगला काम आप यहाँ से कर सकते हो, वो ये है कि इस 6 को प्लस 6 को नीचे ले सकते हो। चलिए, अब
हमें किस टर्म से इसको डिवाइड करना है? सिंपल है, क्योंकि एज इट इज़ लाना है। एक्स स्क्वायर को हम -3x³ बनाना चाहते हैं तो -3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम -3x²। ठीक है, अब -3x² ये हो गया। इसको अब 3x को हमने इसके मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -3x मल्टीप्लाई विद -2। देखिए यहाँ पर -3x मल्टीप्लाई विद -2 गिव्स यू प्लस का 6x। ठीक है, तो इट इज़ +6x एंड नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द अबव। तो साइन इज सब्ट्रैक्शन ओवरऑल, तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो ऊपर की डिजिट होती है उसमें से नीचे इस वाली डिजिट को, ये जो डिजिट है इसे सब्ट्रैक्ट करना है। एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये माइनस 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 प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं? तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस प्लस हो गए, और ये वाली टर्म्स जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपको मिलेगा x² जो कि ये नीचे आ जाएगा, और ये जो 2 है हम इसको -2 यहाँ लिख सकते हैं। अभी आपको सिंपल दिख रहा है कि ये एक जैसा है, तो आप सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इस चीज़ को, तो आपको x² -2 मिलेगा एंड द रिमाइंडर इज़ 0। ये क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये देखिए माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दैट इज़ 0। इस तरीके से आपका रिमाइंडर 0 आएगा, देख सकते हैं ना। अब हम इस लॉन्ग डिवीजन को रिमाइंडर थ्योरम में लिखेंगे। सबसे पहले हम डिविडेंड लिखते हैं, फिर डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस हम रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो डिविडेंड है वो है 2x⁴ माइनस 3x³ 3x² प्लस 6x -2 कैन बी। तो इसके हमने सबसे पहले डिवाइज़र, देन जो हमारा क्वेश्चन आया आफ्टर सॉल्विंग दिस डिविडेंड प्लस रिमाइंडर इज 0। सो जैसा कि हम जानते हैं रिमाइंडर, तो इस px के, यानी जो ये px है, इस px के ये 2 फैक्टर हैं। ठीक है, तो हमने ये 2 फैक्टर, तो ये जो फैक्टर आया है, ये जो वाला ये फैक्टर जो हमने निकाला है ये कंबाइंड फॉर्म में है। इस कंबाइंड फॉर्म के फैक्टर को हम और फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 1 एक फैक्टर है, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं 2x² बाय स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म 2x minus x plus 1 gives you 2x common x minus 1 minus 1। इन दोनों टर्म्स में से आप देख रहे हैं x minus 1 और x minus 1 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x minus 1। तो दिस कैन बी रिटन, सो हम इसको लिख सकते हैं, जो इसके फैक्टर है यानी इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हैं y x² माइनस 2 और x माइनस 1 और 2x प्लस माइनस 1, और ये वेरीफाई करेगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे। एक x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे हैंस जो हमारे फैक्टर्स ऑफ and zeros of polynomial न्यूमेल 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 विल बी, हमें 2 तो दे रखे हैं, दैट इज़ 2 रूट और एक -√2, तीसरा हमारा 1 आ गया और चौथा हमारा 1/2 आ गया। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेंगे।
जो अगला क्वेश्चन है वो है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय ए पी एक्स पॉलिनोमियल बाय पी एक्स दैट इज कॉल्ड, जिसको हम जी एक्स कह रहे हैं, एंड आर एक्स यानी रिमाइंडर आपको गिवन है दैट इज x माइनस 2, सॉरी नॉट इट इज़ क्वेश्चंट क्यू एक्स, ये क्वेश्चंट आपको दे रखा है और आपको आर एक्स दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, तो हमें जी एक्स यानी डिवाइज़र निकालना है। Solution. First of all, we have to write this in the form of remainder theorem. That is qx, और जो gx है वो gx ही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2x प्लस 4, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब आपको पता है कि ये रिमाइंडर है तो एक्स क्यूब माइनस 3x², अब यानी रिमाइंडर को हम यहाँ पर लाएंगे, ये प्लस में 2x हो जाएगा और माइनस 4 इजिकल टू एक्स माइनस 2 इंटू जी एक्स। क्योंकि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ये फैक्टर है, तो यानी कि अगर हम इसके एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमें जी एक्स मिल जाएगा। इस फैक्टर से अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो हमें जी एक्स मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x², अब देखिए इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ 3x और ये माइनस 2 बचेगा, और इन दोनों को देख सकते हैं डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो अब हमें लॉन्ग डिवीजन करना है, तो अब हम इसका डिवाइज़र करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो हमारे पास डिवाइज़र है x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। चलिए इसको अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हम इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, और इसको भी क्योंकि ये पूरा ही प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो पूरा फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो उस हिसाब से माइनस 2x²। On subtraction, the plus sign will be changed to minus and minus sign change to plus. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस x² बचेगा प्लस 3x, अब माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2x। देखिए ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, दैट इज ओनली x माइनस 2 प्लस 1 से करिए तो x माइनस 2 माइनस प्लस फैक्टर हो जाएगा, कट जाएगा 0। तो इसके ये दो फैक्टर आ गए, तो देयरफॉर जो जी एक्स होगा आपका होगा x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड। हमारे पास एक पी एक्स दे रखा है, और उसके ज़ीरोज़ हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये आपके ज़ीरोज़ हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। अगर इसको फंडामेंटली करते हैं तो इट विल बी अ लॉन्ग सॉल्यूशन। सो हमारे पास एक और तरीका है जो हमें पता है कि इसको सिंपल कैसे बनाएं। जैसा कि आपको पता है हमारे पास जो पी एक्स है
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. इट हैज़ 3 zeros. Let the zeros of the polynomial be alpha, beta and gamma. So we have a relation of coefficient and zeros. Alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. Alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to c upon a. Alpha beta gamma is equal to minus d upon a. तो ये आपके पास एक रिलेशन है. By using these relation we can find out the values of the zeros, यानी a minus a and b on पुटिंग. तो हम जानते हैं अल्फ़ा. अल्फ़ा का मतलब अगर हम देखें तो इसे हमने अल्फ़ा माना, इसे बीटा, इसे गामा. ठीक है. तो a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी अगर हम कर रहे हैं तो माइनस, क्योंकि ये वाला साइन माइनस है तो b. अब b देखेंगे तो b क्या है, यानी कि ये जो टर्म है ये b कहलाती है. एक्स स्क्वायर के जो आगे कोएफिशिएंट है उसे b कहेंगे. और a हमारा 1 है तो दैट इज़ 3. इसको देखें कट जाएगा तो दैट इज़ 3 इज इक्वल टू 3. इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1. ये आ गया आपका. आगे देख सकते हैं. अब दूसरे केस में इस वाली इक्वेशन को हमने देखा. अब इस वाली को लेते हैं. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस डी आपका 1 है, a 1 है तो दैट इज माइनस 1. अब आपको पता है कि a की वैल्यू 1 हमने अभी निकाली है. पुट कर सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2. ठीक है. माइनस माइनस कैंसिल. बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2. तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आंसर. तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू रूट 2. हमने ये आंसर निकाल लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, चलो हम इस पे लेते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हम लिखेंगे कि इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स की पावर 4 16x स्क्वायर 10 is divided by gx, जिसको हमने कहा k एंड रिमाइंडर यानी rx x plus a, then find the values of k and a. ये आपका क्वेश्चन है. इसको हम सॉल्यूशन करते हैं. लेट्स डू द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें रिमाइंडर फॉर्म में लिखना होगा. जी एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया, और जो रिमाइंडर है आपका एक्स प्लस ए है. अब आप जानते हैं कि हमें इस रिमाइंडर को इधर शिफ्ट करना है, तो ये आपके फैक्टर बचेंगे. अब देखेंगे कि ये फैक्टर आप इसको कैसे कर, इन दोनों को हमें एक साथ लेना है.
ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इंटू क्यू। तो यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये इन दोनों फैक्टर के बराबर है। तो इसका जो रिमाइंडर है आपको पता है वो 0 बचा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिवीजन करेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो लेट्स डू इट। सोल्यूशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के डिवाइजर, और जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आया है एक्स की पावर 4 यानी डिविडेंड ए। अब हमें इसका डिवाइजर निकालना है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें ये डिजिट 4 लानी है एक्स पावर 4, तो हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम जब हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x4 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x³ आएगा, ये आएगा आपके पास। अब देखिए माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 4x³ बचेगा प्लस x², और इसको हम कॉमन ले सकते। देखिए इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं तो 16 माइनस के लिख सकते हैं। इस वाली डिजिट को हम नीचे लेंगे माइनस 26x। अब हमें माइनस 4x³ चाहिए, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 4x³ आ जाएगा प्लस 8x² हो जाएगा और माइनस 4kx आ जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है x² कॉमन है, 16 माइनस के माइनस 8 बचेगा, क्योंकि इसका ये वाली वैल्यू माइनस आएगी, ठीक है। यहाँ से आप प्लस, अब देखिए ये वाले केस में प्लस x कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा 4k माइनस 26, ये आपका बचेगा। अब हम जो डिविडेंड लेंगे वो लेंगे क्योंकि x² है, तो ये देखिए 16 माइनस 8 बचेगा। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस के प्लस x इंटू 4k माइनस 26। अब जो हम लेंगे वो प्लस 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास x² 8 माइनस के मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। अब 8 माइनस के को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x इंटू 8 माइनस के एंड प्लस k इंटू 8 माइनस के आएगा। ऑन सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे x कॉमन आ रहा है, 4k माइनस 26, यहाँ 8 दूनी 16 यानी माइनस 16 और नॉट प्लस 16, क्योंकि इसका साइन ये प्लस वाला माना जाएगा, तो प्लस 16 और माइनस 2k, और इसका साइन जो है नेगेटिव माना जाएगा, दैट इज माइनस k 8 माइनस k। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर देखिए ये 10 माइनस a है जो कि हमें यहाँ पर लेना था, दैट इज प्लस 10 माइनस a। तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज रिमाइंडर इज 0, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 होता है। हमारा रिमाइंडर आ रहा है मस्ट बी इक्वल टू, तो यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हमें 0 मिलना है, तभी ये 0 होगा। तो उस केस में x 2k माइनस 10 इक्वल टू 0
और दूसरे केस में 10 माइनस ए माइनस के इंटू 8 माइनस के मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 5। तो के की वैल्यू हमें 5 मिल रही है। लेकिन यहाँ से देखेंगे 10 माइनस ए माइनस 8k माइनस के स्क्वायर इक्वल प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें के की वैल्यू डाल सकते हैं। 10 माइनस ए माइनस 40 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से -30 माइनस ए प्लस 25 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू +5 नहीं -5 है। क्यों? क्यों देखिए -30 माइनस ए प्लस 25 बचेगा। ए माइनस ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और आगे देखेंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू -5। ये है आपका आंसर। डन।